خلد آباد میں موجود ایک ایسے اللہ کے ولی جن کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ پیرہن مبارک موجود ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے وقت عطا ہوا تھا، اور یہ پیرہن مبارک آج بھی ان ولی اللہ کی بارگاہ میں خلد آباد شریف میں موجود ہے، جس سے آج بھی زندہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تو ان ولی اللہ کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں مدثر نوری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں حضرت سید خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ 22ویں خواجہ ہے ماشاءاللہ۔ آج ہم سرکار کی بارگاہ کی زیارت کریں گے اور جو بھی معلومات ہمیں درگاہ سے ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جن ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت خواجہ سید زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ سید داؤد حسین آپ کا نام ہے اور شیخ زین الدین لقب بنسبت نام ہے۔ آپ خاص و عام میں لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ خواجہ حسین بن محمود شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 701 ہجری میں بامقام شیراز میں ہوئی۔ آپ ابھی 7 سال کے ہی تھے کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، اور والد نے آپ کو اپنی آغوش شفقت میں رکھا، آپ کی پرورش کی اور آپ کو تعلیم دی۔ والد ماجد سے کتاب نحو و صرف وغیرہ ختم کر کے چھوٹی عمر میں ہی والد کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو کر دارالسلطنت دہلی میں وارد ہوئے اور کلام مجید حفظ کر کے فضائل علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ دہلی کے جید علماء خصوصاً حضرت مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ سے علوم حاصل کیا اور کمال فضیلت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے۔ جب سلطان محمد تغلق نے اہل دہلی کو دولت آباد روانہ کیا تو حضرت مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ زین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی دولت آباد تشریف لے آئے۔ آپ ہمیشہ علماء کے لباس میں رہتے اور اپنا بیشتر وقت علوم کا درس دینے اور حی و قیوم کی عبادت میں بسر کرتے۔ زہد و تقویٰ میں بہت جد و جہد اور کوشش کرتے تھے۔ شرع محمدی و سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع رہتے تھے۔ دولت آباد میں آتے ہی آپ کے علم و فضل کی شہرت ہوئی۔ آپ مشائخ و صوفیہ کی صحبت سے بالکل احتراز اور پرہیز کرتے تھے۔ جب حضرت خواجہ زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دولت آباد تشریف لے آئے تو اس زمانے میں حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشائخیت و بزرگی کا نقارہ بجتا تھا، اور شیخ کی مجلس سماع و سرور کا گلگلہ ملا اعلیٰ درجے تک پہنچ چکا تھا۔ شیخ زین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ خبر سن کر استغفار کیا کرتے تھے اور اس پر طنز و تنقید کرتے تھے۔ بعض طالبان علوم ایسے تھے کہ وہ آپ کے پاس بھی آتے تھے اور حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی معتقد تھے۔ ایک صوفی جو حضرت شیخ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شاگرد اور حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا، آپ سے مشکات المصابیح پڑھنے آیا اور بعد سبق کے حلقہ سماع میں شریک ہوا۔ جب شیخ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خبر ہوئی تو اس کو بہت ڈانٹا کہ تو بھی ناچنے گانے والوں کی صحبت میں جاتا ہے، افسوس کہ تو نے سب پڑھا لکھا ضائع کر دیا۔ اچھا میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سچ سچ بتا کہ فضیلت علم اور دانش مندی میں کون بہتر ہے، میں یا تیرا پیر؟ پہلے تو وہ شاگرد خاموش رہا، لیکن جب با اصرار پوچھا گیا تو وہ عرض کیا کہ بھلا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت دوں۔ اس بات پر حضرت شیخ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ باوجود اس کے کہ تو میرا شاگرد ہے مگر امر حق نہیں کہتا۔ شاگرد بیچارہ جب مجبور ہوا تو ناچار اس نے کہا کہ علوم ظاہری میں آپ کو فضیلت ہے، لیکن حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم باطنی میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں۔ اس بات کو سنتے ہی آپ نے حجرے کے اندر جا کر 4 تختے دولت آبادی کاغذ کے اٹھا لائے، جن کا جواب کامل استادوں سے نہ ملا تھا، اور علماء حرمین سے موضوع ملنے پر حل ہونے کی توقع سے بطور یادداشت لکھ رکھا تھا، اور کہا کہ یہ لو اور اپنے پیر کے پاس جا کر ان کو حل کر کے لے آؤ، اور اس کے لیے میں انہیں 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 6 مہینے میں تیرے پیر نے اس کا جواب دے دیا تو افضل ہے، ورنہ تجھ کو ایسی سزا دوں گا کہ آئندہ علماء کی مجلس میں اس قسم کی باتیں زبان پر نہ لائے گا۔ وہ شاگرد سیدھا حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ جلد آ، بہت دیر سے میں تیرا منتظر ہوں۔ میں نے پہلے ہی حضرت شیخ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوالات کے جواب کئی طرح سے لکھ رکھے ہیں۔ حجرے میں جاؤ اور 8 تختے کاغذ کے رکھے ہیں، وہ لے جا کر ان کو دے دو۔
उस शागिर्द ने मुँह मांगी मुराद पाई, उल्टे पांव वापस आया तो हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने देखा तो मुस्कुराए और समझा कि नाकाम वापस आया है। जब उसके हाथ में कागज़ देखे तो ख्याल किया कि मेरा सौदा वापस लाया है। उन कागज़ों को हाथ में लेकर देखा तो बहुत हैरान रह गए कि सारे शुकूक उन जवाबात से दूर हो गए और आपकी आंखों में आंसू भर आ गए। फिर आपका इनकार एतकाद में बदल गया और 736 हिजरी में मौलाना रुकनुद्दीन इमाद काशानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौलिफ नफ़ाइसुल अनफास हज़रत शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। जिन इरादात से बैत के ख्वाह हुए, शेख ने बैत लेते हुए फरमाया, ऐ फर्जंद मुरीद, जिस दिन निज़ामुल हक वालिदैन ने मौलाना हामिदुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह को शर्फ़ इरादत बख्शा था, ये फरमाया था कि दर तकमील मुरीद कोशी न दर तकसीर, यानी मुरीद की तकमील में कोशिश करना ना कि मुरीदीन की ज़्यादती में। बस आप शेख की बैत से मुशर्रफ हुए और हज़रत सुल्तानुल मशाइख का दिया हुआ खिरक़े खिलाफत और खिरक़े अमानत नेमत से जो सुल्तानुल मशाइख से मिले थे 18 रबीउल आखिर 737 हिजरी में आपको देकर ज़ैनुद्दीन के खिताब से नवाजा। सुबहान अल्लाह। 737 हिजरी बामुताबिक 1337 ईस्वी में हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपको खिलाफत अता फरमाई। पीर के विसाल के बाद आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खानकाह की जिम्मेदारी संभाली और तालीम व फैज़ अता फरमाते रहे। आप दौलताबाद के काजी भी रहे। आप किसी के तोहफे कबूल नहीं करते थे और हक बात बताने में किसी से डरते नहीं थे। सुल्तानों को भी आप हक की ताकीद करते थे। हिदायतुल कुलूब, दलीलुल सलीखैन, हब्बतुल कुलूब में मकामिल महबूब और हब्बतुल मोहब्बत में आपके अक़वाल और तालीमात को जमा किया गया है। सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक, सुल्तान महमूद बहमनी, सुल्तान मलिक राजा फ़ारूकी और उसका शहज़ादा नसीरुद्दीन नसीर खां फ़ारूकी आपकी बहुत ताज़ीम करते थे। सुल्तान नसीर खां फ़ारूकी ने आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की याद में तप्ती नदी के किनारे बुरहानाबाद और ज़ैनाबाद शहर बसाए। आप हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद और खलीफा हैं। आपके खलीफा हज़रत सैयद याकूब रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं और हज़रत सैयद ज़ैनु यूसुफ़ और शमना मीरा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वफ़ात से 3 साल कब्ल बाला खाने पर मुस्तकिल क़याम फरमाया और 2 साल कब्ल एक रोज़ चाश्त की नमाज से फ़ारिग होकर हज़रत ख्वाजा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बुलाया और मुसल्ले से उठकर मशरिक दरीजे से बाहर तशरीफ़ लाए और उस जगह कि अब जहाँ मज़ार मुबारक है वो जगह बतलाकर फरमाया कि यहाँ से वहाँ तक जमात खाना है, मिट्टी उठाकर साफ़ कर दो कि ये जगह काम आएगी। जब हुक्म की तामील में मिट्टी उठा चुके तो हज़रत ख्वाजा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अर्ज़ किया कि वहाँ तक कदम रंजा फरमाएँ। आप तशरीफ़ ले आए और मौका महल मुलाहाज़ा फरमा कर इरशाद फरमाया, अब हमारा जीना और मरना इसी मकाम पर है। 13 रबीउल अव्वल 771 हिजरी बरोज़ दोशंबा मिजाज मुबारक खांसी ज़ुकाम और बुखार से बीमार हुए और आपको पूरे 12 रोज़ तक सख्त बीमारी का सामना करना पड़ा। आपने बीमारी में मुतलक़न कोई चीज़ तनावुल नहीं फरमाई, सिर्फ पानी पीते थे। बाखुद सख्त अलालत व ज़ईफ़ बदन इन अयाम में भी आपने तमाम नमाज़ें खड़े होकर अदा की और किसी सुन्नत व नवाफिल मुस्तहब को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि इमाम शरीफ भी खड़े होकर बांधा करते थे। इन्हीं अयाम में किसी मुरीद ने अर्ज़ किया कि रोज़े के पहाड़ की हवा बहुत सर्द है, दौलताबाद के मकाम पर तशरीफ़ ले जाना मुनासिब है। आपने फरमाया कि मुझे यहीं छोड़ दो कि मैं अपने पीर व मुर्शिद हज़रत शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्ताने मुबारक पर रहूँ। आखिर आप मुझको यहीं लाओगे। इंतकाल के रोज़ हज़रत ख्वाजा शहाबुद्दीन खादिम और बाज़ मुरीदीन और हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद मौलाना शमशुद्दीन फजलुल्लाह, मौलाना ताजुद्दीन मोहम्मद, मौलाना नसीरुद्दीन बदहरी, ख्वाजा रजब और नसीरुद्दीन इमाम वगैरह खिदमत में हाजिर थे। ख्वाजा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अर्ज़ किया कि खुदामीन हाजिर कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं, अगर हुक्म हो तो गुजारिश करें। आपने फरमाया कि मैं जानता हूँ। फिर अहबाब ने सरहातन अर्ज़ कर दिया कि वसीयत करना चाहिए और किसी को जानशीन बनाना चाहिए, क्योंकि वसीयत करना मुबारक है, जैसा कि हज़रत शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपके लिए वसीयत फरमाई थी। आपने ये सुनकर सुकूत इख्तियार फरमाया और किसी को जानशीन नहीं बनाया और किसी को भी उस वक्त मुरीद करने की इजाज़त नहीं दी। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास उस वक्त दुनियावी असबाब में कुछ भी न था, सिर्फ चंद चीज़ें जो किसी ने नज़र किए थे मौजूद थी, वो भी तकसीम कर दी। उसके अलावा किताब खाना था। फरमाया कि किताब खाना वक्फ रहेगा। फिर जब नमाज असर का वक्त आया तो थोड़ी देर बेहोश रहे। फिर हज़रत ख्वाजा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपके कदम मुबारक पकड़कर अर्ज़ किया कि मखदूम, असर की नमाज का वक्त आ गया है। यह आवाज़ सुनते ही बिला सहारे किसी के तैयार होकर मुसल्ले पर तशरीफ़ लाए और खड़े होकर इस आखिरी नमाज को अदा फरमाया। फ़र्ज़ अदा करने के बाद सर मुबारक सजदे में रखा और हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 25 रबीउल अव्वल 771 हिजरी नमाज असर के वक्त विसाल फरमा गए। अल्लाहु अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
फिर तमाम खादिमीन ने दूसरे दिन 26 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर के दिन आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को मदफून किया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो पहरन मुबारक मौजूद है जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज के वक्त अता किया गया था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास वो पहरन मुबारक मौजूद था जो कि आज भी आपकी बारगाह के सहन में मौजूद है, और इस मुबारक पहरन मुबारक की ज़ियारत हर साल 12 रबीउल अव्वल को करवाई जाती है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इस पहरन मुबारक के ताल्लुक से कुछ तफसीली मालूमात भी हासिल करेंगे। और नाज़रीन, हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पायती जानिब बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। इनके ताल्लुक से भी हम नेक्स्ट वीडियो में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, अभी जो आप ये हुजरा मुबारक देख रहे हैं, ये वही मुबारक हुजरा है जहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो पहरन मुबारक मौजूद है जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज के वक्त अता हुआ था, और आज भी इस पहरन मुबारक के ज़िंदा मौजिज़े ज़ाहिर होते हैं। नाज़रीन, आप बड़े ही खुश नसीब हैं जो इस वीडियो के ज़रिए इस मुबारक हुजरे मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक पहरन की ज़ियारत नसीब अता फरमाए, आमीन। तो माशाल्लाह नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत, बिलखुसूस हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए, हम सब के ईमान की हिफाजत अता फरमाए, और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब की तमाम दिली जायज़ नेक तमन्ना आरज़ू मुरादों को पूरी अता फरमाए। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो लोग कर्जदार हैं, अल्लाह ताला उन्हें कर्ज़े से निजात अता फरमाए। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो बीमार है उन्हें मुकम्मल शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग शादी के लिए परेशान हैं, जिन्हें अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सौली रिश्ता अता फरमाए। और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और सौली औलाद अता फरमाए। और जो कर्जदार हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए और उनके रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता कि इसका आमीन करना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब की मन्नतें मुरादें दुआएं पूरी हो जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।